Good morning, everyone. In the previous video lectures, we have studied the concept of hybridization. Okay, and in hybridization, we have studied the covalent compound specifically in which there is only bond pair. There is only bond pair, okay, and no lone pair. Okay, now in this video lecture, or we can say that from onward this video lecture, we studied the shapes of molecules that have bond pair as well as lone pair, because previously we have studied the molecules there is only bond pair, and with the help of hybridization we have studied the molecular structure, geometry and shape of covalent compounds. Okay, now we studied the second aspects of shapes of molecules containing bond pair and lone pair. Okay, lone pair, bond pair means, firstly we see the bond pair. Bond pair means the electron present in between two bonds. Suppose करो A and B, there is an bond, and bond pair means the present of these two electrons that form the bond in between A and B. Okay, that is bond pair. Let's talk about lone pair. Lone pair means there is a molecule AB and I have one lone pair. We can say that AB2 एक molecule है, उसके पास एक lone pair, ठीक है. That means A, B, B and lone pair. Suppose करो there is two pair of lone pair. Okay, this one is the bond pair and this one is the lone pair. LP से represent करो lone pair और BP से represent करो bond pair. So it has been observed that when the molecules have bond pair and lone pair, or we can say when the molecules have lone pair in addition to the bond pair in the valence shell of the central atom, this one is the central atom, geometry gets distorted, because this one also have electron, bond pair is also an electron, lone pair is also an electron and bond pair is also an electron. Both have negative charge and the same charge repels to each other. This one is the bond pair and electron density is mostly in between these two bonds. But in the case of the lone pair, the electron density in 3D environment and in open space, or we can say that the electron cloud of lone pair, this one is the electron cloud. The electron cloud of lone pair is under the influence of only one nucleus. The electron cloud of lone pair is under the influence of
one nucleus or single nucleus, one nucleus atom. Okay, but in the case of the bond pair, the electron pair is under the influence of two nucleus atom. Okay, मीन्स ये पूरा लोन पेयर, दो लोन पेयर एक ही न्यूक्लियस पे है, और ये जो बॉन्ड पेयर के दो इलेक्ट्रॉन है वो दो न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, तो जो बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर का, जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो तो एक कन्फाइंड हो गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। बट जो लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। स्प्रेड होगा तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए। सो देयर इज एन रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। ओके, एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट लोन पेयर lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair, and bond pair जो रिपल्सन होता है वो सबसे कम होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन टू न्यूक्लियाई होती है। और लोन पेयर केस में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो स्प्रेड किया होता है, स्प्रेडेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से रिपल्सन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि जो मॉलिक्यूल्स की जो स्टेबिलिटी हो वो मैक्सिमम हो और जो एनर्जी है वो मिनिमम हो, और जो रिपल्सन हो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में वो कम होना चाहिए। ओके, so this one is the pictorial representation. This one is the NH3 molecules. This one is simply, अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक लोन पेयर है और ये तीन बॉन्ड पेयर है। ओके, बट एक्चुअल में होता क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर्ड, जो मैंने कहा कि जो बॉन्ड पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिटवीन द टू न्यूक्लियाई होती है, और जो लोन पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये लोन पेयर है। ये मशरूम की तरह आपको लग रहा होगा। जो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका स्प्रेड किया होता है। सो जो रिपल्सिव फोर्सेज हैं वो ऑपरेट करते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और उसी की वजह से जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिपल्सिव इंटरेक्शन it has been found that the lone pair repulsion is maximum, or we can say lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair repulsion, and lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion, or simply we can say that lone pair repulsion is maximum and bond pair repulsion is minimum. Okay, this one is the bond pair. जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, when the repulsion in between lone pair and bond pair, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइड मूव करना स्टार्ट करेगा, ये भी बॉन्ड पेयर इस साइड मूव करना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक सेंटर है कि जो बॉन्ड पेयर है वो इस तरह से हो जाएंगे और यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा कि इस रिपल्सन को मिनिमम करने के लिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ए स्टैंडर्ड डिस्टेंस या आफ्टर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस देन देयर इज एन रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में भी रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस बॉन्ड पेयर टेंड्स टू मूव क्लोजर ड्यू टू ग्रेटर रिपल्सन एक्सर्टेड बाय द लोन पेयर, कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे रिपल्सन अप्लाई करेगा तो उससे क्या होगा, बॉन्ड पेयर वो एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, ग्रेटर रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बट एक ये भी नहीं होगा कि बॉन्ड पेयर बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक आ जाए, कि बॉन्ड पेयर, अगर मैं डॉटेड दिखाऊं कि बॉन्ड पेयर ऐसे हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर इतने भी एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे, क्योंकि फिर एक आफ्टर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, आफ्टर ए सम डिस्टेंस, देन देयर इज एन रिपल्सिव फोर्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बिटवीन द बॉन्ड पेयर।
So if we study the geometry and shapes of the molecules that have lone pair in addition to the bond pair, then in that case the geometry of the molecule is not perfectly tetrahedral, octahedral, square planar. There is a somewhat distortion in that molecule's geometry. Okay, so then the concept of shapes come, because in the case of the shape, when we consider the shapes of any molecule, I am simply for determining the shapes of any molecules, only the bond pair is taken into account, bond pair is considered. लोन पेयर का किसी भी मॉलिक्यूल्स की शेप्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ओनली बॉन्ड पेयर के बेसिस पे हम कहेंगे किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। ठीक है, आई थिंक आपको जो ये कंसेप्ट था बॉन्ड पेयर लोन पेयर का वो समझ में आ गया होगा। तो इसी के बाद हम जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स है वो स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, आई होप इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम जो एग्जाम्पल्स है वो स्टार्ट करना, एग्जाम्पल्स को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे जिसमें बॉन्ड पेयर भी होगा सेंट्रल एटम के पास और लोन पेयर भी होंगे।